सर मेरे ख्याल से स्टार्ट कर देते हैं। लोग फिर साथ साथ। चलो, फाइन फाइन फाइन। Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing well. My name is Ahmed Gilani and I have been working as an associate at Katana's Law Chamber for the past 9 months. Our firm KLC has been providing training programs for law students and lawyers for the last few years. We are starting the series of webinars on numerous topics, and today's session marks the first one on intellectual property laws in Pakistan. Me, along with Mr. Basim Nasser, will be moderating today's webinar, and we welcome and thank all of you for joining us today. I would request Mr. Basim to briefly introduce himself, and we shall continue towards the session afterwards. Mr. Basim. Yes. Everyone is requested to please mute their mics. I think Mr. Basim is having some connectivity issues. So the speaker for today is Mr. Ali Salimi, who is an advocate with experience of over 10 years as a practicing lawyer. He did his LLM in the field of intellectual property rights law from UC Berkeley and has worked in some of Pakistan's top law firms. I would like to thank Mr. Ali for taking out time from his busy schedule, and without further ado, let's start the session. Sir Ali, could you please shed some light on the basic idea of intellectual property, which is today's topic? Geez, Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. As Mr. Gilani has introduced myself, uh, I would like to further explain one thing. गिलानी भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन भी यूसी बर्कली से एलएलएम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में है, और मैंने एलएलएम भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में किया। मैं आपको इसके साथ साथ लेडीज एंड जेंटलमैन ये भी बताता चलूं कि आई एम आल्सो टीचिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ टू एलएलएम स्टूडेंट्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर. So I am not only a practicing lawyer, but I have been teaching for the past so many years. और मैं ये सब्जेक्ट एक्चुअली पढ़ा भी रहा हूँ, और इस वक्त पार्टिसिपेंट्स में बहुत मेरे स्टूडेंट्स भी, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एलएलएम के भी हैं, और साथ साथ मैं कंपनी लॉ जो है, कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूसीएल लाहौर में भी पढ़ा रहा हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का सिलेबस पढ़ाते हैं. सो अगेन मैं आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहूंगा, सो दैट यू ऑल आर अब्रेस्ट. एंड अगेन टेक्निकलिटीज को बालातर रखते हुए इसको थोड़ा सा एंगेजिंग सेक्शन, एंगेजिंग हम एक सेशन भी बनाएंगे. और काइंडली प्लीज याद रखिएगा कि हम 1 घंटे में इतनी ज्यादा डिटेल को हम कवर नहीं कर पाएंगे, बट जितना हो सका. एंड अगेन इट विल बी सीरीज ऑफ वेबिनार्स एंड एंगेजमेंट्स, और जिस तरह हमारे पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जाएंगे, हम उस तरह इसको हम मजीद आगे भी लेके जाएंगे. और हमारा मकसद इधर ये है केएलसी की टीम के साथ कि लोगों को एजुकेट किया जाए. ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ना कि आपको एजुकेट किया जाए बल्कि आपको एनेबल किया जाए. हम आपको ट्रेनिंग भी दें कि हमारे पास इस वक्त मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स और दे आर बिकमिंग बडिंग लॉयर्स. So we would want to empower you. We want to empower each and every person who is over here present, so that if they want to practice in this arena, in this very specialized and robust arena, they are adequately enabled. So with that in mind, let's start. So, ladies and gentlemen, intellectual property rights, it's a subject which basically deals with your those rights which you cannot physically see or feel. They are your intellectual rights, and the idea is to protect those rights so that you are not shortchanged. For instance, आपको एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे दूं. आज जो हमारा टॉपिक ट्रेडमार्क का है, हम पैटेंट, कॉपीराइट और वो सारी चीजें, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बताऊंगा आगे जाके, एंड आई विल एक्सप्लेन. फॉर इंस्टेंस, अगर आपका एप्पल का फोन है और आपका एप्पल का लोगो है, या फॉर इंस्टेंस आप नाइकी एक ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, एक फैशन ब्रांड है, उसका नाइकी का जो चेक है, टेक है, ठीक है, वो आप
उसको अगर आप सेफ गार्ड, आपकी एक गुडविल बन जाती है, एप्पल की अगेन एक गुडविल बन गई है। एप्पल इज अ वेरी एमिनेंट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, जो कि अगेन उसका एक फैशन सिंबल भी है, नाइकी का भी एक स्टेटस सिंबल भी है, एक फैशन सिंबल भी है। सो दिस प्रोटेक्ट्स द अदर पर्सन टू यूजिंग योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इन दिस केस द लोगो, क्योंकि हम बेसिकली आज जरा ट्रेडमार्क को स्पेसिफिकली कवर करेंगे। सो आपका लोगो, मार्क, सिंबल, ये आपका प्रोटेक्शन आपको दी जाती है, ताकि कोई भी और बिजनेस दे शुडंट बी अलाउड टू पिगी बैग ऑन योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओवर हियर विच इज द लोगो, और वो उससे फायदा उठा के आपको शॉर्ट चेंज ना कर सके। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द ट्रेडमार्क। और इसको मैं थोड़ा सा आपको, आई वुड लाइक टू ड्रॉ एन एनालॉजी विद अदर एंड डिफरेंशिएट विद द अदर काइंड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस, which is one is the यार copyright, वो तो देख रहा है। and one is रेडी हो गया। is patent. So copyright जो बेसिकली है, आशा जी कॉपीराइट आपका आइडिया जो है वही उसके तो। एक्सप्रेशन को सेव गार्ड करता है। ठीक है, एंड बेसिकली आपके आर्टिस्टिक आइडियाज के एक्सप्रेशन को सेव गार्ड करता है। फॉर इंस्टेंस, आपने अगर कोई म्यूजिक लिखा है, आपने कोई फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा है, ठीक है, या आपने कोई गाना लिखा है या कोई परफॉर्मेंस की है आपका, वो बेसिकली कोई मूवी भी हो सकती है, ड्रामा भी हो सकता है, इवन आपकी यूट्यूब पे कोई आपकी वीडियो हो सकती है, आपकी रील हो सकती है, whatever, आप उसको अगर आप सेव गार्ड कराना चाहो तो वो आप कॉपीराइट में करोगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, कोई इनोवेशन है, या आप इंक्रीमेंटली ऑलरेडी कोई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन है या कोई प्रोसेस है, आप उसमें एफिशिएंसी लेकर आते हो, सो आप वो पैटेंट में जाके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो दीज ओवर आर्चिंग थ्री, अभी मैं आपको सिर्फ फॉर ब्रेविटी एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ तीन पे मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हैं। कॉपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंटेल लॉट ऑफ अदर थिंग्स, फॉर इंस्टेंस डाटा प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, उसको हम बाद में टच करेंगे, बट ओवरऑल ये तीन चीजें जो हैं, जो आप समझने के लिए, इन पे आपकी जो राइट्स हैं, वो द एम ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विच इज आईपीओ इन पाकिस्तान, वो आपके ये राइट्स प्रोटेक्ट करती हैं। So all this is a brief introduction of what intellectual property is. जी गिलानी भाई। Thank you, sir. Sir, Okay, so Ali bhai, I have a question. जी This is Basim Nasser, जी वासिम भाई। and I'm the moderator for the day with Mr. जी जी Ahmed. जी जी हाँ जी, so basically मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आपने अभी briefly बात की थी regarding the types of the intellectual property rights. मैं जी चाह रहा था कि particularly पाकिस्तान में अगर हम सबकी बात ना करें तो सबसे ज्यादा जो particularly rights की जो आप registration देखते हैं या litigation देखते हैं या उस पे emphasis देखते हैं, वो कौन से? जी, very pertinent question, Basim. So basically, the theme of today's theme is trademarks registration. So in my 12 years of practice, what I've seen is that the most robust litigation is seen in Pakistan. It's I'm not saying patent और copyright की नहीं होती, बट वो ट्रेडमार्क की हमें ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि जो सिंबल है, लोगो का कॉन्सेप्ट है, बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज्यादा इट इज टू बी सीन एट द फोर फ्रंट ऑफ लिटिगेशन। फॉर इंस्टेंस, आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। रिसेंटली इन द रिसेंट पास्ट, आप सबको पता होगा, एक बहुत फेमस ब्रांड है, कॉफी ब्रांड है इंटरनेशनली, स्टारबक्स। ठीक है, स्टारबक्स की कॉपी आई थी, एक कराची में एक स्मार्ट बिजनेस पीपल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब्दुल सत्तार बख्श के नाम से कॉफी शॉप खोली। ठीक है, अब्दुल सत्तार बख्श, लोगो भी बहुत सिमिलर था, नीचे स्टारबक्स को उन्होंने सत्तार बख्श की तरह लिखा हुआ था, और वो एकदम से ठीक ठाक कराची में फेमस हो गई। सो देखा यह गया कि स्टारबक्स वो इतनी फेमस हो गई कि जब स्टारबक्स को पता लगा तो स्टारबक्स ने इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल किया। सो ये जो लोगो की जो सिंबल की वॉरफेयर है, जिस तरह अगेन आप, अगर आपका आशनाई पंजाब से है और आप लाहौर में है, तो आपने अभी पंजाब में देखा जा रहा है कि जो बट कढ़ाई का जो रेस्टोरेंट है, इसकी बहुत ज्यादा लिटिगेशन देखी जा रही है। जो सारे के सारे बट कढ़ाई के इस वक्त रेस्टोरेंट्स हैं, उनके वो इन्फ्रिंजमेंट सूट में इस वक्त इन्वॉल्व है। तो ये चीज मैंने देखी है इन माय प्रैक्टिस के ट्रेडमार्क के ऊपर ठीक ठाक लिटिगेशन होती है। ठीक है, एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप अमंगस्ट ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पैटेंट। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का आपस में काफी ज्यादा इंटरेक्शन है, और बोथ ऑफ द राइट्स दे आर एट कस्प ऑफ ईच अदर एंड दे डू ओवरलैप। फॉर इंस्टेंस, आपको एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। गेस जीन्स एक ब्रांड है, एक फैशन ब्रांड है, आप बहुत ज्यादा लोगों को उससे आशनाई होगी।
नहीं भी है तो इट्स अ वेरी फेमस इंटरनेशनल ब्रांड लाइक लुई वुइटन, ठीक है। सो उन्होंने जो अपना लोगो है, वो ब्रांड का जो नेम है गैस, इट इज अ इन्वर्टेड ट्रायंगल और बीच में गैस लिखा है विद क्वेश्चन मार्क। दे कॉपीराइटेड इट, ठीक है, दे डिडंट रजिस्टर्ड इट एज अ ट्रेडमार्क, ठीक है। सो अगेन उसकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल अलग हैं। कभी कभार आप दोनों चीजों को, एक ही चीज को कॉपीराइट भी करते हो, ट्रेडमार्क भी करते हो, वो देन इट इज एन एडवांस क्वेश्चन कि दोनों में फर्क क्या है और आप वो क्यों ऐसे करते हो। वो अगेन आई वोंट बोर यू टू डेथ ओवर हियर। अगर आपके किसी के स्पेसिफिक सवालात हैं तो वो फिर सर इफ यू कैन, आई अपोलोजाइज फॉर जी कटिंग जी इन बिटवीन, जी जी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पर टच अप ऑन कर सकते हैं कि कॉपीराइट और अपना ट्रेडमार्क के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस अगर वन लाइनर आपको बताना पड़े जी जी तो। जी जी मालिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। सो देखिए, इसमें इट इज डिफिकल्ट टू पुट इट इन अ वन लाइनर, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, कॉपीराइट जो है ना, कॉपीराइट इज ये आपके आइडिया के एक्सप्रेशन को सेव गार्ड करता है, ठीक है। इफ यू हैव एन आइडिया, फॉर इंस्टेंस के जी मैंने एक मूवी बनानी है पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के ऊपर या इलेक्शन के ऊपर, मैंने डॉक्यूमेंट्री करनी है। सो सर, इसमें देखें, इलेक्शन के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर बेतहाशा चीजें हैं, बेतहाशा लिटरेचर है, बेतहाशा फिल्में हैं। लेकिन अगर आप उस आइडिया को एक्सप्रेस एक यूनिक वे से करते हैं, ठीक है, या आप एक दिल दिल पाकिस्तान का जो गाना है, आप उसको रैप में या किसी सिंधी स्टाइल में गाते हैं या पश्तून बलोची स्टाइल में गाते हैं, तो आप उस आइडिया को एक्सप्रेशन, डिफरेंट एक्सप्रेशन को आप सेव गार्ड कर सकते हैं, वो आपकी कॉपीराइट में आ जाता है। सही है। इसी तरह अगर आपको लिटरेचर लिखते हैं, ठीक है, आपने कोई, फॉर इंस्टेंस आपका ब्रांड है, सर आई डोंट नो, आपका कोई फूड ब्रांड हो सकता है, ठीक है, आप उस फूड ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट में आप कुछ लिखते हैं कि जी आप ये जूस या ये फलाना प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, इट्स वेरी स्क्रम्पचियस, इट्स वेरी जूसी, आपका मेन्यू में उसकी डिस्क्रिप्शन बड़े एक फनी तरीके से लिखी हुई है। सो आपने उस आइडिया को एक्सप्रेस एक डिफरेंट तरीके से किया। सो वो जो उसकी स्टाइलिंग होगी और उस आइडिया का एक्सप्रेशन होगा ना, वो आप सेव गाइड कॉपीराइट में करेंगे। और जो उसका लोगो होगा, जो सिंबल होगा बिजनेस का, फॉर इंस्टेंस लेट्स इमेजिन आपका नाम शायद समथिंग बारी था, तो आपने बारी के नाम से कोई फूड ब्रांड बना रहे हैं, बारी फूड्स, तो जो आपका उसका बी और एफ लोगो डिफरेंट सा जो होगा, वो आप उसको ट्रेडमार्क कराएंगे, ठीक है। और जो आप उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, कि अगर आप लिख रहे हैं कि जी वी ऑफर सच एंड सच काइंड ऑफ फूड्स और बेवरेजेस एंड दे आर वेरी स्क्रम्पचियस, और उसकी इंग्रेडिएंट्स ये हैं, सारा कुछ, और आप वो पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, आपने फ्लायर्स लिखते हैं या आप अपना मेन्यू बनाते हैं, सो वो जो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, वो उसकी कॉपीराइट होगी। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल आपको देके खत्म करता हूँ। फॉर इंस्टेंस नाइकी है, नाइकी का सर टिक है, नीचे लिखा है जस्ट डू इट, सो जो जो उसका टिक है, दैट वुड बी द लोगो, दैट वुड बी द ट्रेडमार्क, और जस्ट डू इट या उसके नीचे कोई छोटा सा आप सिंबल या कुछ राइटिंग में लिखते हैं, सो दैट वुड टेक्निकली बी ए कॉपीराइट। लेकिन आप उसको ट्रेडमार्क में भी करा सकते हैं, वो कोई राइटिंग छोटी सी आपने चीज लिखी हुई है, और वो आप वाइस वर्सा उसको ट्रेडमार्क में भी कर सकते हैं, ठीक है। सर सो ये देन जो अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप। आई होप आई बीन एबल टू अंडरस्टूड, एक्सप्लेन इट, ठीक है सर। अंडरस्टूड। Sir, as you have mentioned, there are a lot of benefits to हैदर, registering. आपकी ये जो भी भाई बोल रहे हैं, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज है जी, प्लीज कंटिन्यू। Uh, पायरेट के बारे में क्या कहना चाहते हैं जी आप? Sir, वो भी I think ट्रेडमार्क और जो आपने बताया कॉपीराइट के। जी, इब्राहिम, आपका सवाल दोबारा रिपीट करते हो। सर पायरेट के बारे में इनका क्या पायरेसी, आप रिलेशन है? पायरेसी के बारे में पूछ रहे हो, ऐसे ही है, पायरेसी इन जी कॉपीराइट, सर। एम आई राइट? सो अगेन, पायरेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। पायरेसी पाकिस्तान में एक रिसर्च थी, कुछ साल डेट पुरानी है, अगेन नंबर्स कैन बी काउंटर चेक्ड एंड वेरीफाइड, कि पाकिस्तान को बिलियन डॉलर्स का तकरीबन तकरीबन जो है हमें नुकसान होता है। उसके लगभग ही कोई फिगर है, आप यू कैन चेक इट। हमारी मिनिस्ट्री अगेन, जो आईपीओ है पाकिस्तान में, दारा 2017 में बना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज run by it is under the auspices, if I may, of Ministry of Commerce, ठीक है। सो उनकी एक रिसर्च थी, उसमें पता लगा था कि हमें ठीक ठाक पायरेसी पे नुकसान होता है, ठीक है। एंड पायरेसी होती क्या है, जो बाकी भाई हैं, बहन भाई मेरे हैं इधर, पायरेसी बेसिकली ये होती है कॉपीराइट में कि अगर आपने कोई म्यूजिक
किसी प्रोडक्शन हाउस का म्यूजिक है, या कोई प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, या कोई ऐसी कोई भी चीज हो सकती है, इवन किताब हो सकती है, उसकी आप अगर पायरेटेड कॉपीज उस म्यूजिक की, फिल्म की, ड्रामे की या किताब की अगर आप बनाते हैं और वो बिकती है मार्केट में, फॉर इंस्टेंस ओरिजिनल किताब आपको कोई 2,500 की मिल जाएगी, 5,000 की मिल जाएगी, लेकिन उसकी प्रिंटेड पायरेटेड कॉपी है, वो आपको सस्ती मिल जाती है, तो दैट इज कॉल्ड पायरेसी। वो आपने कॉपीराइट एक्नॉलेज नहीं किए होते, और उसकी जो रॉयल्टी और जो मैकेनिज्म है, पैसा है, वो उसका ओरिजिनल ऑथर या उस प्रोडक्शन हाउस को नहीं जाता। सो उसमें बेसिकली पाकिस्तान को ठीक ठाक लॉस होता है। और हमारी इंटरनेशनल कुछ कमिटमेंट्स भी हैं, अगेन पाकिस्तान दुनिया के कवानीन में, कॉमन लॉ के कवानीन में, पाकिस्तान इटसेल्फ इज अ कॉमन लॉ कंट्री। एक कॉन्सेप्ट होता है डुअलिस्टिक स्टेट्स का, उसमें जो आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं वो तब तक इन्फोर्स नहीं होती जब तक आपका पैरेलल डोमेस्टिक कोई लॉ ना हो। ठीक है, सो पाकिस्तान की बेतहाशा इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जिसमें मैड्रिड प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रिप्स की कन्वेंशन है, उसके एवज हमने कोई कवानीन पास किए जिसमें आपकी इस कॉपीराइट को रोकने की कोशिश की गई। जिसमें से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल ये है कि अगर आपकी अब कॉपीराइट की वायलेशन होती है, तो आप टेक्निकली आप एफआईए में जाके उसको, एफआईए को भी इट्स अ फेडरल ऑफेंस अंडर द एफआईए एक्ट, सो आप उसकी एफआईआर काट सकते हैं, बट उसकी भी एक्सरजीसीज थोड़ी सी मर्की हैं। वो अगेन मैंने अपनी जो क्लास है, मेरे जो स्टूडेंट्स इस वक्त अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा, उसमें एक जजमेंट भी है लाहौर हाई कोर्ट की, गालिबन बहावलपुर बेंच की। सो उसमें भी इफ्स एंड बट्स एंड केवियट्स हैं। और उसमें कस्टम जो आईपीओ है, आईपीओ के अंडर कस्टम ऑफिसर्स भी, कस्टम इदारा भी आता है, उसमें एससीसीपी भी आता है, उसमें एफआईए भी आती है। और अगर आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी वायलेशन है, सो वो आईपीओ जो है, आईपीओ ऑफिस उसको कंट्रोल कर सकता है, और वो इंस्ट्रक्शंस उन पे लाजिम होगी, ये जो बाकी इदारे हैं, एससीसीपी वगैरह, एससीसीपी, कस्टम्स एंड एफआईए। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन मिस्टर इब्राहिम। Right, sir. Sir, how do you think IP benefits businesses on a micro level and economy on the macro level? Because they all So, are interlinked. जी 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 बिल्कुल, as it basically emanates from the previous question which Mr. Ibrahim asked. So देखिए, मैक्रो लेवल पे तो मैंने अभी थोड़ा सा जिक्र कर दिया कि हमें कितना, यू कैन अगेन, मेरे को बहन भाई ऑनलाइन चेक भी कर सकता है कि पाकिस्तान को कितना लॉस होता है। सेकेंडरी सोर्सेज होंगी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल अदारा है, लाइक द यूएन और द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द ओवरआर्चिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको करती है। उनकी रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं, वो आप में से कोई बहन भाई इधर सर्च करके देख भी सकता है। सो देखें, आप प्रोटेक्शन अगर होगी तो फायदा आपको तो बहुत ज्यादा होगा। चलें आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे दोस्त अहबाब, इधर आप लोगों ने मौला जट, एक बड़ी फेमस अभी रिसेंटली द लेजेंड ऑफ मौला जट मूवी बनी गई, ठीक है, उसके Right. भी बड़े इश्यूज थे, पुरानी मूवी के कॉपीराइट्स की वायलेशन के मसले थे, तो वो इसलिए आपको पता होगा कि मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट बहुत डिले, बहुत देर से रिलीज हुई, ठीक है। सो अब जो हमारी द लेजेंड ऑफ मौला जट मूवी है, आपको हैरानी होगी, आप अगेन यू कैन क्रंच द नंबर्स एंड चेक इट योरसेल्फ, कि वो ठीक ठाक बिजनेस कर रही है, ठीक है। वो इंडिया Right. में भी रिलीज हो रही है, पाकिस्तान की वाहिद मूवी है जिसने इतना ज्यादा इंटरनेशनली बिजनेस किया है। चाइना में भी रिलीज हो रही है, नॉर्थ अमेरिका में किसी वो इंडियन मूवीज को उसने बेसिकली के लेवल पे उन्होंने बिजनेस किया है। सो देखिए, अगर आपका कॉपीराइट, वो अगेन आपको मौला जट मूवी इस वक्त किसी पायरेटेड इंजन पे शायद मिल जाएगी, लेकिन आपको नेटफ्लिक्स वगैरह किसी, आपको उस सर्वर्स पे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने आपके पास कॉपीराइट्स हैं, और आप उससे जो आप पैसा है हमारा प्रोडक्शन हाउस पाकिस्तान का, वो ठीक ठाक कमा रहा है। सो दिस इज वो जस्ट वन एग्जांपल कि अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजें करें तो आप कितना फायदा उठा सकते हैं। इसकी एक पर्टिनेंट एग्जांपल हॉलीवुड है। व्हेन आई वाज इन बर्कली, और मैं ये मास्टर्स कर रहा था इस पे, तो वी हैड केस स्टडीज के जो हॉलीवुड है वो इस वक्त, और इवन द गेमिंग इंडस्ट्री, आप सबको बड़ी हैरानी होगी सुन के कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो काट चुकी हुई है हॉलीवुड को। कि जो एक गेम है इस वक्त, अगेन आई थिंक, आई एम कंप्लीटली फॉरगेटिंग द नेम, वाई सिटी की गिलानी, शायद आपको पता होगा। आप अगेन यू आर रिलेटिवली क्वाइट यंग देन अस। जो उसका जो लेटेस्ट है वाई सिटी की गेम, वो इस वक्त दुनिया की द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव तरीन गेम बनी हुई GTA है। 5. GTA Yeah. 5, एग्जैक्टली, GTA, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। सो वो दुनिया की इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव तरीन गेम है, उसको बनाने में जितना पैसा लगा। और इस वक्त अगेन आई गेस PS की, एक्सबॉक्स की जो एक मूवी है, मूवी कह रहा हूँ, जो गेम है, वो 25-30 हजार तक भी टच कर जाती है,
ठीक है। सो कोई आपको मूवी और गाना इतना महंगा नहीं मिलता जितनी एक वीडियो गेम मिलती है। सो अगेन अगर पाकिस्तान इसको, और इंडिया इंडिया भी इस पे बहुत फोर फ्रंट पे है, सही है, तो पाकिस्तान की अगेन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, ठीक है, कोक स्टूडियो आपके सामने है, हमारा जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो बहुत रोबस्ट है, आपको पोटेंशियल नजर आता है फिल्म इंडस्ट्री पे। तो अगर हम अगेन इसी साइड पे, ये सिर्फ एक 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 चीज को मैंने पकड़ा है, इस सारी पूरी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, लेकिन सिंस कॉपीराइट का सवाल था, सो मैं कॉपीराइट से उसको आंसर दे रहा हूँ। तो आप इसी को पकड़ लें, तो मैक्रो लेवल पे भी बहुत ज्यादा है, माइक्रो लेवल पे भी है। ट्रेडमार्क पे अगेन आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान की विद इंडिया, हमारे बासमती राइस का इशू चल रहा था। बासमती राइस अगेन आप में से कुछ लोग आशना होंगे कि वो प्रोडक्शन पाकिस्तान के कुछ इलाकों में होता है, इंक्लूडिंग बिहारी एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग शेखोपुरा, इस साइड पे, बट वो इंडिया उसको हमसे खरीद के इंटरनेशनली बासमती के नाम से एक्सपोर्ट कर रहा था। तो पाकिस्तान ने केस किया, द अर्स्टवाइल गवर्नमेंट, जिनके नाम लेने पे भी कदगन है, ठीक है, सो उन्होंने केस किया, हम इंटरनेशनल हमारी आर्बिट्रेशन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की आर्बिट्रेशन थी उस पर भी एक्चुअली वन द केस। सो अब हम अपने नाम से भी बासमती बेच सकते हैं। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें। पिंक सॉल्ट इज वन थिंग, वो सिर्फ हमारी खेवड़ा में ही प्रोड्यूस होता है, सही है। फिर उसकी जियो लोकेशन आप ले सकते हैं कि दुनिया में कोई भी बंदा अगर कोई भी सॉल्ट बेच रहा है तो उसको मेंशन करना ही है खेड़ा पाकिस्तान से। सो ये अगेन ट्रेडमार्क की अगेन इट्स अ ऑलरेडी इट्स एन ऑफशूट, उस पर भी एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है। सो अगेन इसका ठीक ठाक कमर्शियली आपको पाकिस्तान पे इंडिविजुअल लेवल पे और बड़े लेवल पे फायदा हो सकता है, ठीक है। ओके, सो अली भाई, लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल पॉइंट। मैं एक्चुअली ये सोच रहा था हम्म कि वी डिस्कस्ड के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स क्या है पाकिस्तान में, उसकी उसके बारे में आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने सब कुछ समझाया। नाउ लेट्स गेट टू द प्रैक्टिकल पॉइंट। अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल ये पूछूं कि हाउ टू रजिस्टर योर ट्रेडमार्क। देखें, आपने सब बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में से एक राइट आपका ट्रेडमार्क है। सो इफ वी स्टिक टू द ट्रेडमार्क, सो उसका क्या प्रोसीजर है पाकिस्तान में? जी 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 जी, आपने अगेन बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको सिर्फ एक, मुझे सिर्फ सेकंड दे दो, मैंने ये जो चीज है ना एक्चुअली ये लिखी हुई भी है, मैं आपको फॉर श्योर, फॉर मैं श्योर। वर्बली भी बता सकता हूँ, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने कहा सामने चीजें हो तो मैं आपको वो उस तरह बिल्कुल बताऊँ। सही है, अच्छा देखें, बिल्कुल एक तो सही चीज ये है कि ट्रेडमार्क की ना, अभी ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, इंटरनेशनल हमारी कमिटमेंट्स भी हैं, हमारी ट्रिप्स कन्वेंशन के अंडर कोई कमिटमेंट्स थी जिसके अंडर रिसेंटली, बल्कि पिछले साल हमारी रेगुलेशंस आई हैं कि अब प्रेजेंटली स्पीकिंग जो ट्रेडमार्क है ना, ट्रेडमार्क आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हो। पहले एक्चुअली फिजिकली होता था, आप टीएम फॉर्म्स होते हैं, वो भी मैं आपको अगेन वी कैन हैव सेपरेट वेबिनार ऑन दैट, कि आपको मैं प्रोसीजरली समझा सकता हूँ वो क्या है। आपको पहले फिजिकली जाके अपने लोगो की डिस्क्रिप्शन, कलर, लोगो, इसके साथ आपको टीएम फाइल करने पड़ते थे, जिसमें आपका आप खुद भी कर सकते हो, आप अटर्नी के थ्रू भी कर सकते हो, और वो मैकेनिकल तरीके से आप देते थे, जमा कराते थे, वो उसकी स्क्रूटनी होती थी, ऑब्जेक्शंस आते थे, ठीक है, ऑब्जेक्शंस को आपको सेटिस्फाई करना पड़ता था, फिर उसकी पब्लिकेशन होती है, पब्लिकेशन के बाद आई गेस मेरे ख्याल से 3 महीने होते हैं, कोई भी अवामुन नास उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है, अगर किसी ने किया तो फिर उसकी ऑब्जेक्शन प्रोसीडिंग्स होती हैं, दैट इज बेसिकली सेमी क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एट द ट्रेडमार्क ऑफिस। अगेन पंजाब लाहौर में है तो लाहौर में होगी, पिंडी में है, इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद, सो ऑन सो फोर्थ। फिर उसकी ऑब्जेक्शंस जो आपकी प्रोसीडिंग्स क्लियर हो जाती हैं, तो फिर फाइनली जाके आपका ट्रेडमार्क आपको मिल जाता है। तो ये चीजें पहले मैकेनिकली हो रही थी, अब ये सारी चीजें आप ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू भी आप इसकी फाइलिंग कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, आपकी मैड्रिड प्रोटोकॉल्स के बाद ये चीजें अब आप इंटरनेशनली, यानी अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो, मुझे अगर मेरा इधर कोई दोस्त भाई फूड इंडस्ट्री में है, किसी भी इंडस्ट्री में, टेक इंडस्ट्री में है, सो अगर आप यूरोप से काम करते हो, अगेन पाकिस्तान की एक मेजर मार्केट है यूरोप, इवन यूएस फॉर दैट मैटर, फार ईस्ट, तो आप इंटरनेशनली भी पाकिस्तान बैठे बैठे आप ये चीजें फाइल कर सकते हो इंटरनेशनली, ठीक है। उस पे अगेन आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, बहुत सिंपल और जबरदस्त किस्म की वीडियोस हैं, जो कि आप आईपीओ की साइट पे जाओ, ट्रेडमार्क पे जाओ, तो आपको वो वॉक थ्रूज भी मिल जाएंगे। अगर कोई भाई मेरा चाहता है, इस पे हम अगेन एक नेक्स्ट एक डिटेल वेबिनार कर सकते हैं, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बल्कि मेरे एसोसिएट्स हैं, मैं उनको इन्वॉल्व करके आपको लाइव वो स्क्रीनशॉट्स के साथ भी हम बता सकते हैं, हम आपकी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं बाय द वे, क्योंकि इसमें अगेन देयर इज अ लॉट टू अर्न एंड लर्न फ्रॉम दिस, फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। सो हम आपकी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं कि किस तरह आपने फाइलिंग करनी है। आई हैव स्पेशलाइज्ड टीम
जिधर जिधर सामने आपको नजर आ रहा होगा उनमें से एक ताहिर शकील साहब हैं, इस्लामाबाद में होते हैं। फिर मेरे एक असद मोहम्मद असद हैं, अली हैं, वो भी इस्लामाबाद से हैं। मेरी लाहौर में भी टीम है। कराची में भी एक है मारिया, आई डोंट नो इधर अभी सुन रही हैं कि नहीं, वो कराची ऑफिस को देखती हैं। सो जिस इलाके के लोग हैं हम, इवन केपी में भी वी हैव अ बेस, मिस्टर गिलानी एंड वासिम, यू कैन वाउच फॉर दैट। हम उधर से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, सो ऑनलाइन इवन कर सकते हैं। सो अगेन आपको थोड़ा सा मैं इंटरनेशनल बता दूं, क्योंकि इंटरनेशनल लोगों को अभी बिल्कुल एक फ्रेश चीज है। उसमें अगेन अगेन जिस तरह बाकी ट्रेडमार्क के लिए आप पहले तो चेक करते हैं। फॉर इंस्टेंस लेट्स इमेजिन हम बारी फूड्स के लिहाज से चल रहे हैं, कि बारी फूड्स के आप कोई अपना ब्रांड बनाते हैं, ठीक है। सो उसमें आप सबसे पहले तो देखेंगे पाकिस्तान में इंटरनेशनली कि जी बारी और इस स्टाइल कलर स्कीम के लिहाज से कुछ और तो नहीं है इंटरनेशनली, क्योंकि आपने ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप तो है ना, आपने अपना ब्रांड का नाम लोगो बनाना है और उसको मुनफरद रखना है, ताकि यू डोंट वांट टू फॉल इनटू द क्लचेस ऑफ इंफ्रिंजमेंट। सो आप एलिजिबिलिटी चेक करते हो पाकिस्तान में, यूजली आप फाइल करते हो पाकिस्तान में, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होगा। आप टीएम चेक करते हो, अब वो इंटरनेशनली भी चेक होता है, उसमें रिसर्च एंड क्लियरेंस का एक मैकेनिज्म होता है बिफोर फाइलिंग। फिर आप एप्लीकेशन का रूट चेक करते हो कि क्या मैंने डायरेक्ट पाकिस्तान में फाइल करना है, या मैंने मैड्रिड प्रोटोकॉल्स के तहत मैंने मैड्रिड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑफ मार्क्स में करना है। फिर अब अगेन उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल भी बना दिया, वहां जाके वो ड्रॉप डाउन बॉक्स पे अगेन वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियोज हैं। वो इसी तरह ही है जिस तरह आप अपना ईमेल एड्रेस बना रहे होते हो या सीसीपी में कंपनी के लिए फाइल करते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। आप उधर से फिर आप फाइलिंग करते हो, ठीक है। बट इफ यू ऑप्ट फॉर द मैड्रिड सिस्टम यू शुड फाइल इट थ्रू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, वीपो की वेबसाइट के थ्रू आप करते हो, ठीक है। मैड्रिड सिस्टम ने उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया बाय अलाउइंग यू टू फाइल वन एप्लीकेशन इन वन लैंग्वेज, ठीक है। यानी बेसिकली इंग्लिश में भी, यूरोपियन ममालिक फ्रेंच और स्पेनिश में भी कर सकते हैं, मेजर 3-4 लैंग्वेजेस हैं, उसमें आप फाइल करते हो विद वन सेट ऑफ फी, ठीक है। फीस शायद मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 500 यूरोज या 800 यूरोज थी, वो हम चेक कर सकते हैं अगेन, जब आपको कंप्लीट वॉक थ्रू में दे सकता हूँ। और फिर आप अगेन आपका जो ट्रेडमार्क होगा वो मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस में, मल्टीपल कंट्रीज में वो सेफ गार्ड होगा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाकी जगह भी होगा, ठीक है। सो फिर अगेन उसमें आप एप्लीकेशन का फॉर्म होता है, वो आप ऑनलाइन अपलोड करते हो चीजें, लोगो सिंबल डिस्क्रिप्शन वो उसी तरह ही है जिस तरह आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जिस तरह हमारा लोकल होता है वो बेसिकली अब आप ऑनलाइन कर देते हो, फी पे करते हो, उसका रिव्यू करती है अगेन, पहले आपको आईपीयू से राउट होती है, दो जो मैंने प्रोसेस बताया, या आईपीओ पाकिस्तान या वीपो के थ्रू इंटरनेशनल कर रहे हो तो वो उसको रिव्यू करते हैं। अगेन पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी लॉ लगेगा, एंड पाकिस्तानी लॉ इज अगेन इट मिरर्स द इंटरनेशनल स्कीम लाइक एनी अदर थिंग। जिस तरह हमारा कंपनी लॉ है हमारा, इस तरह ट्रेडमार्क लॉ भी बिल्कुल एग्जैक्टली मेजोरिटी ऑफ द कॉमन लॉ कंट्रीज में बहुत ज्यादा सिमिलर है। सो उसका रिव्यू का प्रोसेस होता है, फिर अगेन वही पब्लिकेशन होती है, ऑपोजिशन होती है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, एक टाइम तक रजिस्ट्रेशन होती है। बाहर की जुरिस्डिक्शन में फर्क होता है, पाकिस्तान में सिंस पाकिस्तानी लॉ लगता है उतना टाइम पीरियड होता है, और फिर आप उसको अगेन बिफोर द एक्सपायरी आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। दैट्स इट। सो सर आई इस हैव पे अ हम क्वेश्चन, कैन आई जी आस्क? जी जी एक सवाल। जी कौन अभी पहले कौन? अभी मैं देख रहा था कि माशाल्लाह हम लोग काफी पूरे पाकिस्तान से हैं, कुछ लोग इस्लामाबाद से हैं, कुछ लोग कराची से हैं। एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, जैसा जी कि जी जो लोग प्लीज प्रैक्टिस ताहिर। करते हैं उनको पता होगा कि बहुत वीक और बहुत स्लो प्रोसेस है आईपीओ में। इवन के जो मेरी एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन की वो पेंडिंग है 2019 की, 2018 की। तो जी जी आप जी जी। सब लोग, क्या आप सब नहीं समझते कि एक इसकी एसोसिएशन होनी चाहिए, जिस तरह रितबा है रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन, इस तरह जो लॉयर्स हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में प्रैक्टिस करते हैं उनकी भी एक एसोसिएशन होनी चाहिए, ताकि हम लोग इस मसले को एड्रेस तो करें कि बिल्कुल ही एक फजूल सा अदारा है, मतलब आपको बहुत टाइम टेकिंग है ये। आपने ताहिर मेरे दिल की बात कर दी। मैं फॉर डिसेंसी और अगेन एक एजुकेशनल पर्पस के लिए अगेन, और देखो ये इट मिरर्स टू एवरी अदर थिंग इन पाकिस्तान। अब वो जी हमारा अनफॉर्चुनेट सिस्टम है, लेट्स नॉट बैश इट, लेट्स नॉट गो इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, बट आपने बात बिल्कुल सही की है। और बिल्कुल देखो कानून ना, जो आइडियल सिस्टम होता है वो यही होता है कि जब भी आपको कानून बनाते हो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, डिजाइन के लिए, आप जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, स्टेक होल्डर्स जिसका हमारे मुल्क में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इवन लेजिस्लेशंस में, आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। जिस तरह यूके की मैं एग्जांपल देता हूँ, सिंस आई आल्सो टीच यूके लॉ, वहाँ लॉ रिफॉर्म ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। कैबिनेट जो होती है आपकी
का हुकूमत होती है, वो लॉ के ऊपर एक रिव्यू ग्रुप बनाती है, जिस तरह क्रिमिनल लॉ रिव्यू ग्रुप, कंपनी लॉ रिव्यू ग्रुप, उसमें वो एकेडमिक से सब लोगों से पूछते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ अगेन अगर आपने किसी ने नेपरा का काम किया हो टैरिफ के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, उनकी साइट पे चीजें आती हैं, आप उनसे टाइम देते हैं, पब्लिकेशंस अखबारों में करते हैं कि जी हमें बताएं क्या मसला है क्या नहीं, वो आपने बात बिल्कुल ठीक किया है। ट्रस्ट ग्रुप्स तो होने चाहिए। वकील जिस तरह बाकी चीजों को ट्रस्ट ग्रुप्स हैं, वो ख्वाह टैक्स के वो बार में हो गए, बाकी हो गए, वो एक अदर डिबेट है कि वो इलेक्शन में सिर्फ अपने वोट लेने में लगे रहते हैं क्या। बट ये तो बिल्कुल, और देखो ये एक एक स्केल पे हम भी जो अभी इस तरफ कर रहे हैं हम सारे, वो हम यही तो कर रहे हैं, एक दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं, और हमें देख रहे हैं कि इसको किस तरह एफिशिएंसी लाई जा सकती है। अगेन डिले के ऊपर, अब पाकिस्तान के हालात थोड़े से इस तरह के हैं, लेकिन टेक्निकली आप चाहो तो आप आईपीओ में अगर आपने एप्लीकेशन दी है, उसका टाइम होता है। सो अगर वो नहीं कर रहे, आप आईपीओ का एप्लीकेशन देके आप रिट जुरिस्डिक्शन में जा सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप रिट में जाओ, आपको कि जी ये देखिए इतना डिले है, इससे जरा मुबादला पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, बिजनेस को नुकसान हो रहा है। सो वो अगेन इंटरेस्ट ग्रुप के थ्रू भी आप कर सकते हो, वो आपके पास लिटिगेशन का भी राउट है। जिस तरह के आपको मैं भी पर्टिनेंट एग्जांपल दे दूं इलेक्शन की रिगिंग के ऊपर, अभी इस वक्त प्रेजेंटली स्पीकिंग, सलमान राजा साहब वेरी एमिनेंट लॉयर, उनको मैं असिस्ट भी कर रहा था, वो 127 के ऊपर उन्होंने रिट फाइल की, और उन्होंने जो रिजल्ट्स हैं उनको उस वक्त भी रुकवा दिए चेकिंग के लिए। सो वो तो देखो मैकेनिज्म है ही है, वो आप इंटरेस्ट ग्रुप से करो, आप पॉलिटिकल करो, यही तो हम जो सारे लॉयर्स हैं, वी हैव लॉट ऑफ पावर, हम लॉ को भी जानते हैं, हम लोगों को, और एक एजुकेशन ट्रेनिंग इज द वे आई थिंक। लड़ाई झगड़ा और इन सब चीजें करने पे अगर हम शऊर एक दूसरे को थ्रू दीज वेबिनार्स, हम एक दूसरे को शऊर दें, बालातर करें एक दूसरे की नॉलेज को, और एक फोरम बनाएं और उस तरह चलें, तो आप एजुकेट हो गए तो आईपीओ या कोई भी इदारा फिर आपके साथ पंगा नहीं कर सकता। सो दैट्स द आइडिया। आपने बहुत अच्छी बात की, और वो हमने मिलकर ही देखो ठीक करना है, उसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है, ओवरनाइट नहीं है हो सकता। ठीक है, बट जो आपने किया बात की बहुत अच्छी की, और मल्टीपल सोल्यूशंस हैं, उन सब पे हमको काम करना चाहिए। थैंक यू आई फेयर सर। होप। इनफ सर। एक सर ऑडियंस से एक और देयर इज अ क्वेश्चन। जी 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 हबीब हमजा साहब ही वाज रेजिंग हिज हैंड, तो जी 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 काफी जी बात जी काफी देर से आ रहा था, बिल्कुल जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम अली। अच्छा अली वालेकुम भाई, सलाम। जहाँ तक देखें बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, उसी तरह डिफर्मेशन लॉज हैं पाकिस्तान में, वो भी हम्म, काफी वीक हैं, काफी स्लो हैं। तो हमारी फर्म में जब कोई केस आते हैं जी जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तो वो मेजोरिटी टाइम्स जो हमारे कंप्लेनेंट्स होते हैं वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैकेनिज्म काफी स्लो है। तो इसके बारे में आपका क्या इंटेक है कि क्या इसकी वजह लेजिस्लेशन है, या वकला की इसमें अदम दिलचस्पी है, या क्या इसको आप कैसे देखते हैं? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू यार, आप लोग बहुत अच्छी सवाल पूछ रहे हो, बड़ी प्रैक्टिकल सवाल पूछो। देखो यार, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ना, कोई भी माशरा, तरक्की याफ्ता माशरा, मैं आपको यूएस की एग्जांपल दे सकता हूँ, जिधर मैंने पर्सनली चीजें देखी भी, जब मैं पढ़ भी रहा था, थोड़ा सा काम भी किया। सो जो तहजीब याफ्ता माशरा होता है ना यार, वो लड़ता नहीं है, ठीक है, वो लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाता। और वकील का एक काम, वी वेयर डिफरेंट हैट्स। हम वकील का काम सिर्फ देखो कोर्ट में नहीं है कि आप जाके कोई केस ही है तो केस ही फाइल करोगे, स्टे लोगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं। आपका काम यह है कि आप अपने क्लाइंट्स को एडवाइस भी करो, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन तगड़ी हो, रजिस्ट्रेशन पूरी हो, ठीक है। देखो आपके पास अगर ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट है या कॉपीराइट का राइट है, सो वो डेटरेंस है ना, कि यार ये देखो ये मेरा राइट प्रोटेक्शन अगला नहीं करेगा। बट दैट डेटरेंस एट टाइम्स डज नॉट सफाइस, लोग फिर भी हरकतें करते हैं, इन्फ्रिंजमेंट करते हैं, उसके लिए आप कोर्ट में जाते हो। कोर्ट में जाके फिर आपको पता है, हमारा जो बाहर के ममालिक में और इवन हमारे लॉ में भी सेक्शन, आई गेस बाकी भाई मुझे करेक्ट कर सकते हैं, 35 है क्या सीपीसी का, आप कॉस्ट भी जो है आप ले सकते हो अपनी लिटिगेशन की। ठीक है, कि अगर आपने केस जीते हो या आपके खिलाफ केस हुआ है, तो आप अगली पार्टी को अगर आप जीत गए हो तो आप कहते हैं जी मुझे कॉस्ट भी दें। यहाँ इसका मैकेनिज्म कोई नहीं है, बाहर ही एक्चुअली फॉलो होता है। ठीक है, सो वो लोगों को पता होता है, वो अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि भाई अगर हम केस हार गए तो दिवालिया पूरी, हम बिजनेस से ही बाहर हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। सो फिर आप क्या करते हो, देखो लाइफ दुनिया में हर चीज बड़ी स्मार्ट नेगोशिएशंस होती हैं। तो फिर अगर आपके पास राइट पूरा है, आप केस फाइल करके, आप नेगोशिएशन करके सेटलमेंट की भी तरफ आ सकते हो। और अगेन लॉयर्स का काम दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी ट्रेंड आ रहा है कि वो नेगोशिएशंस भी है। ठीक है, क्योंकि यू नो द लॉ, आपको पता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं, केस कितना आगे तक जाएगा, आप जीत भी सकते हो, क्या हो सकता है। सो फिर आप पल्ला अपना भारी करके सिंपल टर्म्स पर आप नेगोशिएशन की तरफ भी जा सकते हो। एंड अगेन इट्स ऑलवेज अ रूट। बाहर जिस तरह आपने इतना अच्छा सवाल किया कि इसको अगर मैं डिटेल पैटेंट के हवाले से बताऊं, तो दुनिया भर में एफ आई में पैटेंट वॉर्स होती हैं। एप्पल, सैमसंग, अभी आपने भाइयों को किसी को पता होगा, मसीमो एक इटालियन कंपनी है जो कि स्मार्ट वॉचेस, एप्पल वॉच में ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए उनके पास एक डिवाइस थी जिससे वो चेक करते थे, और एप्पल ने उनके साथ लाइसेंसिंग की हुई थी। अभी मसीमो ने उन पर स्टे ले लिया।
ठीक है एप्पल पे, वो स्टे विशिएट हो गया। सो वो सारी पैटेंट वॉर्स हैं, वो फिर अगेन आउटसाइड कोर्ट नेगोशिएट कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, कुछ कहीं केस चल रहे हैं। सो ये तो देखो दुनिया भर में ऐसा होता है, जंगें ऐसे होती हैं, जंगें होती हैं, फिर हम नेगोशिएट करके सेटल करते हो, सीज फायर करते हो। सो इसी तरह वकालत भी ऐसी है। सो ये तो चीजें साथ चलती रहती हैं, यू कांट बाइफरकेट बोथ ऑफ देम, दे आर बेसिकली सिनर्जाइज्ड। इन दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। सो आई होप आई Can I आंसर्ड। have a question, please? Thank जी, हु आस्क्ड Hello. दिस? जी, शकील साहब। जी, शकील बात कर रहा हूँ, मैनेजिंग पार्टनर प्रूडेंशियल मिडिल ईस्ट लीगल कंसल्टेंट्स जी यूएई। जी मैं जी पिछले जी 15-16 साल से यूएई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपने बहुत जबरदस्त अच्छे है। एनालिसिस दिए, इट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, दुबई में ये हमारे वहाँ पे यूएई में के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जो वायोलेशन है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है? जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ यूएई है वो इमीडिएटली अप्लाई होता है। आप सीआईडी में कंप्लेंट कर सकती हैं। देयर इज अ स्ट्रिक्ट एक्शन, आई मीन, टू प्रोटेक्ट ओके। आईपी राइट्स ऑफ योर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स व्हाटएवर यू आर डूइंग। मेरा क्वेश्चन ये कि क्या पाकिस्तान में इस तरह की जो ट्रेडमार्क वायोलेशन है उनके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस के तहत भी आप कानून को हरकत में ला सकते हैं या नहीं? थैंक यू। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू शकील साहब, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। इट इज quite heartening to hear this kind of appreciation from a fellow lawyer, especially in another jurisdiction. So sir, to answer it pertinently, देखें मैं वही देख रहा हूँ, पीपीसी यहाँ होनी तो चाहिए, शायद पुराना वर्जन हो। बिल्कुल पाकिस्तान पीनल कोड में है। आप मेरे भाइयों में से कोई इस वक्त अगर करे, खोले पाकिस्तान पीनल कोड, आप कंट्रोल एफ करके आप लिखें ट्रेडमार्क, तो आपको आ जाएगा, एग्जैक्ट सेक्शन आएगा, गालिबन 400s में कहीं है पाकिस्तान पीनल कोड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो बिल्कुल है। और साथ ही साथ जिस तरह मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल से ताहिर इस वक्त पीपीसी खोल के, वो भी ऑफिस ही बैठा हुआ है, ताहिर शकील, वो यही खोल के देख रहा है। सो बिल्कुल है। और दूसरा, जिस तरह के मैंने सर अभी अर्ज किया कि कॉपीराइट की वायलेशन भी इन्होंने अब वो एफआईए को अथॉरिटी दे दी है, उससे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, बट देयर आर वेरी अ लॉट ऑफ केवियाट्स। उसमें काफी कैवियट्स हैं। और अगेन जिस तरह की हमारी पुलिसिंग है, हमारा पुलिस का निज़ाम है, वो एट टाइम्स कम्बरसम होता है, लेकिन हमने कराए हुए भी हैं, इफेक्टिव भी हुआ हुआ है। आपको चले मैं अपनी एक एग्जांपल शकील भाई देता हूँ। मैं आज से कुछ अर्सा पहले किसी फर्म में काम जब कर रहा था, तो उसमें मेट्रो ने ना डिज्नी के प्रोडक्ट्स रखे हुए थे, टॉयज, मिकी माउस की टी शर्टें वगैरह और ऐसी चीजें। सो जो डिज्नी है ना, डिज्नी ने उनके खिलाफ इधर केस कर दिया, और उसमें उन्होंने ट्रेडमार्क की इन्फ्रिंजमेंट सूट पे एक एप्लीकेशन भी होती है, सीजिंग ऑर्डर की, कि भाई ये सारा का सारा जो सामान है ये सीज किया जाए, इसकी प्रोडक्शन भी रोकी जाए। सो और तब उस टाइम पे अगेन मेरे लाहौर के दोस्त भाई इधर होंगे, उनको अगर याद हो, 2013-14 की बात है, वाई ब्लॉक में डिज्नी का एक ऑफिशियल स्टोर भी खुला था। सही है, दैट्स हाउ दे नो कि भाई हमारा तो एक प्रोडक्ट कोई लेता नहीं है, लोग शालमी से लेकर या मेट्रो से लेकर डिज्नी के प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं और हमारा लॉस हो रहा है। सो उस पर बहुत सख्ती हुई थी। बल्कि मेट्रो को जब ये ऑर्डर आया था, मेट्रो ने खुद हमें बुला के लॉयर्स को दिखाया था कि जी देखिए, हमने सारी चीजें उठा दी हैं, हमने कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करते, कुछ भी नहीं करते, वी आर जस्ट अ रिटेलर। सो बिल्कुल होता भी है, इस पे सख्ती भी होती है। बल्कि कस्टम, जिस तरह मैंने बताया, आईपीओ जो है, आईपीओ इदारा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो इदारा है, उसके अंडर एफआईए, कस्टम्स और एससीसीपी सारी आती है। और अगेन एक और भी, ये बहुत कम लोगों को पता है, प्रैक्टिस में लोगों को पता है, हमारा जो कंपटीशन कमीशन है 2010 के एक्ट के बाद, आफ्टर दी 18th अमेंडमेंट, कंपटीशन कमीशन का गालिबन 94 या 96 सेक्शन है, आप में से कोई चेक भी कर सकता है। डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट वो यही है कि आपकी प्रोडक्ट ट्रेडमार्क आप किसी को, आप इम्पर्सनेट किसी और को करते हुए अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वहां भी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। ठीक है। सो देर इज अ लॉट ऑफ मैकेनिज्म। वो और बात है कि वो आगे लेवल, चैलेंजिंग लेवल पे, रिट लेवल पे आके वो क्वेश्चन रेज होता है कि जी आपकी जो रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आईपीओ एक अलग अदारा है, कॉपी अपना कंपटीशन कमीशन अलग अदारा है, तो आपके पास राइट नहीं था करने का। बट बिल्कुल अगर आप उसको एफिशिएंटली लेके चलो, मैनेज करना पड़ता है, जिस तरह का पाकिस्तान है, चीजों को, पुलिस को, एफआईए को, कस्टम को बिल्कुल मैनेज करना पड़ता है, लेकिन हो सकता है। नॉट एज थैंक एफिशिएंट यू एज वेरी दुबई। मच फॉर योर क्लैरिफिकेशन, इट्स रियली थैंक अमेजिंग। यू। नहीं आपने नहीं, बहुत अच्छी थैंक यू, क्लैरिफिकेशन दी। थैंक छोटी यू। सी मैं सजेशन भी जी दूंगा, जी इफ आई जी एम जी, नॉट बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, वेस्टिंग योर प्लीज टाइम प्लीज, विद नहीं ड्यू नहीं, रिस्पेक्ट। प्लीज, आई एम ऑलवेज ओपन टू उसमें सजेशंस एंड उसमें ये इम्प्रूवमेंट। है कि देखिए, एक मेरे ख्याल में, मैं कभी कभी ना या लाहौर में मैं फैमिली जाता हूँ खाना वाना खाने, तो हमारे यहाँ इधर एक बट कढ़ाई भी है, बड़ी पॉपुलर है, जी, मेरे ठीक पास है? केसेस तो हैं मेरे पास उसके जी जी केसेस हैं, मैंने वो बताया खाना भी। खाने जाते हैं ना, तो वो अभी यही कंफ्यूजन होती है जी, ये ओरिजिनल वाला बट कढ़ाई नहीं है जी, ये 2 नंबर है ऐसे ही है। जी,
इनका टेस्ट सही नहीं है। अच्छा, मेरी इसमें सजेशन ये है जी जी कि आप लोग जो हैं, आप जैसे आईपी के कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, जैसे आप इस पे एक पब्लिक अवेयरनेस सेशन स्टार्ट करें, लाहौर सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू या इस्लामाबाद वेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वेरी के थ्रू। पर्टिनेंट हर वक्त सर। ये जो इतनी इतनी यहाँ पे इलेक्शंस की नॉनसेंस किस्म की एक्टिविटीज होती हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट श्योर कि नहीं आप नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही, इसको नहीं नहीं, किसी आप सेंस आप में, आप सही कह क्योंकि रहे हैं, मैं हम दुबई में मिरर 16 करते हैं। साल से रह रहा हूँ, 16 जी ईयर्स जी। आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ इन यूएई। मैंने देखा वहां पे कोई इस तरीके की बार एसोसिएशन ये वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका जुडिशियल सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत एफिशिएंट है। तो हम ये, चलो ठीक है, बार के जो भी हैं, बार और बेंच, वो क्या, वो एक अलग बहस है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ सेशन स्टार्ट करें, लोगों को अवेयरनेस दें कि आईपी राइट्स ये हैं, कि ताकि जो है ना इंडस्ट्रीज वो ग्रो करें और इकोनॉमी ग्रो हो, क्योंकि आईपी जो राइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी एआई के कॉन्टेक्स्ट में और सब चीजें। तो मेरी छोटी सी सजेशन ये नहीं कि नहीं आप सर, इसके ऊपर सेमिनार्स कंडक्ट आप करें। थैंक नेक्स्ट यू। टाइम आए, आप नेक्स्ट टाइम आए, आपको इनवाइट देते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स में। और हमारा प्लान भी यही है कि हम ये भी पहले ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करें, एक काफिला इसी तरह ही साथ साथ कारवान चलता रहेगा भाई, हाथों से हाथ मिलते जाएंगे। तो बिल्कुल हमारा भी यही आइडिया है, ये वेबिनार करने का मकसद भी यही है। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक Sir, I think Mr. Zulkarnain Haider also has a question. यू। जी जी, Sir, ये शायद आप मेरे स्टूडेंट हैं यूसीएल में। जी जी। नहीं, अस्सलाम वालेकुम और जुल्कर जी। जी सर। sir. I am a practicing lawyer in Rawalpindi, and सर, I wanted to ask question that you have told the process in Intellectual Property Organization of Pakistan is an organization which is the supervisory jurisdictional authority in Pakistan. बट आई वांट टू से आस्क अ क्वेश्चन कि अगर ये अथॉरिटी है जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम एक ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया था, तो जिस तरह ये सर ताहिर शकील साहब ने कहा है कि जी 2019 से मेरा पेंडिंग है, एक्नॉलेजमेंट आ जाती है और एक्नॉलेजमेंट आने के बाद वो सो जाते हैं, जैसे अब ऐसे ही है, अब आगे कुछ करने वाला नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे इस है। तरह का अब उसके मतलब हमें अब सिविल कोर्ट्स हैं, इवन हम फैमिली कोर्ट्स हैं, डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस है, कस्टम कोर्ट है, हमें पता है इसकी एपेलेट अथॉरिटी ये है। मतलब अब हमने एक्नॉलेजमेंट ले ली तो हमें उसका कोई ऐसी अथॉरिटी की क्यों नहीं पता कि जिसको हम फौरन एक एप्लीकेशन मूव करें कि फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर, जिस तरह हम नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग करते हैं। एक ये क्वेश्चन, प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एक स्पेशल कोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उसको प्रिजाइड करते हैं, वो अभी रिसेंटली बिल्कुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोर्ट इधर खोली गई है रावलपिंडी में। तो अब ये जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक कोसाई जुडिशियल अथॉरिटी एक किस्म की है और बिल्कुल प्लस ऐसे ही है। रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है। तो जो है, ये जो आप स्पेशल कोर्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोर्ट खोली गई है, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, और क्या हम उसके अंदर ये एप्लीकेशन फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर मूव कर सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट आप है जो है वो 2019 से एक्नॉलेजमेंट इशूड हो चुकी है, तो अब हमें इसके ऊपर अप्रोप्रिएट डायरेक्शन इशू करके हमें फौरन क्यों नहीं एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता। ये सर। थैंक यू जुल्करनैन, आपको मैं थोड़ा सा और गाइड कर दूं। बड़ी सही प्रैक्टिकल बात अगेन आपने पूछी। बाबर सत्तार की अभी ना एक रीसेंट जजमेंट आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। मैंने लास्ट अपनी क्लास में उसको जरा अनपैक करने की भी कोशिश की, क्योंकि ये आप सही कह रहे हो, पिंडी और इस्लामाबाद में बड़ी कंफ्यूजन थी। लाहौर और सिंध में ये बैरियर था, लेकिन वो क्रॉस हो गया था। बाबर सत्तार की वो जजमेंट है। अगेन मैं आपको ग्रुप में ना, आप इस ग्रुप में रहें सारे, मेरा यही से सबको एक सजेशन होगी, तो मैं उसमें वो जजमेंट्स भी और कुछ लिटरेचर भी, आपके जो भी सवालात होंगे आईपी से रिलेटेड, और अगेन मैं अपने आप को इम्प्रूव भी करना चाहता हूँ, कोई चीज़ नहीं भी पता होती वो मैं इवन सर्च करके आपको अपनी टीम के साथ वो चीज़ें दे दूंगा। वो बाबर सत्तार की जजमेंट पढ़ें, उसमें वो सारी डिटेल लिखी हुई है। क्योंकि वहां पहले कंफ्यूजन होती थी कि एक हाई कोर्ट में भी लोग केस जाते जाते थे, आईपीओ डिपार्टमेंट में ऑब्जेक्शंस चल रही होती थी, तो फिर कानून ये कहता था, ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस, कि जी अगर दोनों जगह पैरेलल चल रही हैं तो आप हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकते हो। सो जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कोर्ट्स बने हैं, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का साहब खातून या साहब उधर उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं ट्राइब्यूनल के, कहते हैं ट्राइब्यूनल लेकिन वो होता कोर्ट ही है, एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लेवल का बंदा उसको चलाता है। सो वो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी, बट वो बाबर सत्तार की जजमेंट ने वो कंफ्यूजन को काफी ज्यादा क्लियर किया इन पिंडी इस्लामाबाद, कि अब आपने जाना है तो ट्राइब्यूनल ही जाना है। लेकिन लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव, आप सेक्शन 3 पढ़ें, अथॉरिटी एंड सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ आईपीओ एक्ट, उसमें अगर कोई मैनेजमेंट के हवाले से कोई गलती या मसला आ रहा है तो आप आईपीओ भी जा सकते हैं। सो उसका अगेन टू प्रॉन्ग हल है कि अगेन अगर आपका इन्फ्रिंजमेंट ट्रेडमार्क की वायलेशन है, ऐसी कोई चीज है, तो वो आप ट्राइब्यूनल जाएं।
एडमिनिस्ट्रेटिव जो आप कह रहे हो कि जी वो हमें डिले कर देते हैं क्या, सो अगेन जो मुझे अभी तक समझ आती है उसमें यही है कि आप आईपी ऑफिस कंप्लेन करें, ठीक है। वो नहीं होता तो फिर आपके पास रेट जुरिस्डिक्शन भी है, ठीक है, क्योंकि वो फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आ जाएगा ना, सही है। बट ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि देयर इज अ कंफ्यूजन। आप अगर मेरे से पर्सनली एक कन्वर्सेशन करना चाहो तो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि एक मल्टीपल इदारे बिल्कुल हैं। फॉर इंस्टेंस ट्रेडमार्क अगर आपने रजिस्टर कराना है तो वो आप ट्रेडमार्क ऑफिस जाते हो, उसकी इन्फ्रिंजमेंट है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट ट्राइब्यूनल में एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हो, वो उसकी इन्फ्रिंजमेंट देखता है। और साइमल्टेनियसली आपकी ऑब्जेक्शन प्रोसीडिंग्स भी चल रही होती हैं, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन भी चल रही होती है, और आपका इन्फ्रिंजमेंट भी चल रहा होता है। पहले ये होता था पुरानी स्कीम ऑफ लॉ में, अब ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट आई है कि अगर आपने कैंसिल कराना होता था तो फिर आप हाईकोर्ट जाते थे, तो तीनों जगह लिटिगेशन चल रही होती थी। अब उन्होंने कहा है कि यार नहीं, आप सिंध और लाहौर वाला फॉलो करो कि आप उसको हाईकोर्ट ना लेके जाओ, हाईकोर्ट वैसे ही ओवरवर्क्ड है, सो आप उसको नीचे ही उसको डील करो। बट वो आई डोंट नो, मेरे इस्लामाबाद के भाई दोस्त अहबाब बताएंगे। मैं तो स्पेसिफिक स्पेशलाइज के हाईकोर्ट के केसेस के लिए मैं जाता हूँ इस्लामाबाद, बट मुझे नीचे का एक्चुअली नहीं पता कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। एक मंथ पुरानी बाबर सत्तार की जजमेंट है। आप इस ग्रुप में रहें, मैं वो ढूंढ के आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। आप मेरे लिंक्डइन पे भी फॉलो करें, मेरे लिंक्डइन पे मैंने लगाई भी है, और बल्कि मैं इधर, ये आपने बड़ी अच्छी चीज की, मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, वो आप एक दफा पढ़े, नहीं समझ आती, आई एम ऑलवेज देयर टू डिस्कस, ठीक है। थैंक यू जुल्करनैन, आई होप आई partially answered your question. Thank you. Thank you so much, sir. Mr. Aman Kader, you can ask your question. अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे यूएसपीटीओ में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो मुझे बता दें काइंडली प्लीज। दोबारा सर, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं समझ मैं सका। अर्ज कर रहा हूँ यूएसपीटीओ में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है जी, वो मुझे आप थोड़ा यूनाइटेड बता दें। स्टेट, आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे ही है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यूएसपीटीओ जी जी। जी 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 जी। देखें, एक तो आपके मैड्रिड प्रोटोकॉल्स हैं, आपने रूट जो है वो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो आपका WTO के अंडर वो आते हैं, तो जिस तरह के मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया आपको, अगर वो रूट आपने मैड्रिड प्रोटोकॉल्स का करना है, वो यूरोप का तो बिल्कुल है, यूएस का मुझे बिल्कुल देखना पड़ेगा, तो या तो आपका वो रूट होगा, सही है, या फिर आप थ्रू एजेंट। यूएस में तो यही है कि आपको पाकिस्तान में अगर बैठे हुए आपने करना है, वहाँ जो है एजेंट को आप हायर करें, ठीक है, वो आपके बिहाफ पे वो जो सारी इनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं लॉ की, वो सर अगेन मेरे सामने, अगेन मैंने ये ट्रेडमार्क पढ़ा हुआ है बैक इन 2017, मैंने सब्सटैंटिव लॉ मास्टर्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन जो वो प्रोसीजरल चीजें हैं वो आप कहते हैं तो मैं आपको स्पेसिफिकली मैं इस ग्रुप में भी भेज दूंगा, वो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको भी बताई है, वो जो सारी स्टेप बाय स्टेप है मैं आपको भेज भी दूंगा, क्योंकि सिंस आई डोंट एक्टिवली प्रैक्टिस इन द यूएस, आई हैव अ डिग्री, मास्टर्स डिग्री, जिसमें मैंने सब्सटैंटिव लॉ पढ़ा हुआ है, बट आप प्रोसीजर चाह रहे हैं मैं आपको स्पेसिफिकली भेज भी दूंगा, आपको बल्कि कनेक्ट भी करा दूंगा। आर्नल्ड अलेजेंड्रो हैं एक, कैलिफोर्निया में मेरे दोस्त हैं, वो ट्रेडमार्क का स्पेशलाइज्ड काम करते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं नुमान कि वैसे ये फेडरल लॉ है आईपीओ से रिलेटेड, बट यूएस में एक चक्कर ये भी होता है कि आपने देखना होता है कि क्या ये फेडरल लॉ है या स्टेट लॉ है, सो फिर आपने वो लॉ के अकॉर्डिंगली फिर फाइलिंग करनी होती है। जहां तक मुझे पता है ये जो ट्रेडमार्क, ये जो आईपीओ है, ये सारा फेडरल लॉ है, सो आप वो फेडरल लॉ के तहत किसी भी स्टेट में कोई भी जो लॉयर है वो आपके बिहाफ पे कर सकता है। सो अगेन टू रूट्स हैं, या WTO वाला, या आप एक्चुअली अंडर द यूएस लॉ करते हैं। सो वो एक्चुअल जो चीजें हैं वो मैं आपको किसी प्रैक्टिसिंग लॉयर से डबल चेक करके कंफर्म करके भेजूंगा, क्योंकि अगेन इट्स अ वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड थिंग, मैं आपको गलत बयानी नहीं करना चाहूंगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज एक्सप्लेन विद द असिस्टेंस ऑफ माय पार्टनर इन कैलिफोर्निया में कर दूंगा। आई होप आई आंसर्ड। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, ये नहीं, नो जिसका इश्यूज, आपने नाम बताया यूएस में जो स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं इसमें, जी नहीं वो प्रैक्टिस उनका अगर करते आप, हैं, जी जी, स्पेशलाइजेशन नहीं, प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको कर अच्छा दूंगा, मैं आपको, आप मुझे पर्सनली भी क्वेश्चन, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको उनके साथ टच बेस करा दूंगा, और जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। बस ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी आपने मच। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला ठीक है, थैंक यू। Fair enough. Sir, there's a question from my side. मैं actually अपने conscious के मुताबिक उस दिन एक चीज सोच रहा था कि अभी जो आईपी लॉज हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली अगर वो लॉज इवॉल्व कर रहे हैं तो उसके जो केस लॉज हैं वो भी इवॉल्व कर रहे हैं। सो मुझे सिर्फ इसके अंदर आपसे पूछना ये था कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगेन, एक जस्टिस मुशीर आलम के केस के अंदर जो यूके साइटेड जजमेंट थी, उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान में फैसला
तो मैंने कब मांगा था? मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपने प्लीज माइक्स ऑफ कर सकते हैं प्लीज काइंडली। जी प्लीज, नुमैर शायद आपका माइक ऑन था। जी जी, आप जस्टिस मुनीर आलम का कुछ पूछ रहे जी थे। अच्छा, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि अभी जिस तरह कानून इवॉल्व कर रहा है, तो क्योंकि इंग्लैंड के अंदर, इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि इट इज अ सेटल्ड लॉ, और उनके केस लॉज भी सेटल्ड है इसके ऊपर। सो इंग्लैंड के अंदर हम अपनी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा करते थे, एक मोरॉन इन हरी टेस्ट था, कि वो एक जैसी सिमिलर चीजें थी, तो वो देखने में सेम, मतलब जो पोर्टल्स हैं वो बंदा सेम उसको समझ के लेना कोई और ब्रांड की चाहता था, ले किसी और ब्रांड की पासिंग चाहता ऑफ जिसको बोलते हैं, डिसेप्टिवली सिमिलर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मैं सिर्फ समझना ये यूएस में इसको चाहता हूँ, डिसेप्टिवली सिमिलर बोलते हैं। ठीक है। बिल्कुल मैं समझना ये चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि जो इंग्लैंड के अंदर चीजें डिसाइड हो रही है हमारे पे बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कोर्ट स्पेसिफिकली आईपी के मामले के अंदर उसके ऊपर कितना रिलायंस रखती हैं, अगर कोई जजमेंट साइड की मैं जाए आपको बताता हूँ। तो उसको मैं आपको समझाएं। बिल्कुल, आपने बहुत अगेन बहुत ही अच्छा वासिम, आप योर क्वेश्चन ऑफ अ पर्सन शोज हिज और हर एप्टीट्यूड। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखो, लाइक एनी अदर थिंग ना, देखो पाकिस्तान में देयर इज a lot of dearth of case law on technical things and intellectual things, if I may say. कंपनी लॉ की अगर मैं एग्जांपल दूं, वो भी ऐसे, आपको कोई भी चीज जब समझ नहीं आती या होता है केस लॉ ही नहीं होता, तो आप इंडिया की तरफ जाते हो। ठीक है, मेरे सारे भाई इस वक्त जो वकील भाई हैं वो सर नोट कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं, तो आप कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस की तरफ जाते हैं। सो पाकिस्तान में भी ऐसे है कि आपका जो कानून था ना, आपको अगर मैं बताऊं पेटेंट का, और ये 1900 पहला जो 1911 से ये स्टार्ट हुआ है, फिर ये 60s में आया, फिर अब जाके 2000 में, अब फिर 17 में भी कुछ चीजें, अब तो रिसेंट अमेंडमेंट भी हुई है। सो ये इवॉल्व करता रहता है, और हमारे यहाँ अगेन काफी डेप्थ होती है, तो बिल्कुल करते हैं। जिस तरह मेरे काफी बेतहाशा केसेस हैं जिसमें हम अगेन ये जो डिसेप्टिवली सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं इवन अपनी क्लास में, मेरे स्टूडेंट्स, ताहिर वाज माय फॉर्मर स्टूडेंट, तो मैं बिल्कुल बाहर के जो बाकी जुरिस्डिक्शन के केस लॉज हैं, मैं उसका डेफिनेटली हवाला देता हूँ। और कोर्ट में भी जहां उस चीज पे, इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन, आपको बात में पता ही होगा, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ना हो, कोई केस लॉ ना हो, तो उसको केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं। तो उसमें तो आप करते ही रिलाय फॉरेन जुरिस्डिक्शंस पे हो। एंड अगेन इफ आई मे ऐड, किसी को बुरा लगेगा नहीं, सो हम तो, मुझे लगता है अभी भी कॉलोनी है, तो हम तो अभी भी यूके का या यूएस का केस लॉ ही रिलाय करके हम अपना, इफ वी टेक्निकली ट्राई टू गेट आवर वे इन कोर्ट। बाकी डिस्क्रेशन इज ऑलवेज फॉर फ्रेंड, इफ यू नो द जज, तो फिर आपको केस लॉ की भी बताने की नहीं जरूरत। बट हाँ, फॉर फॉर्मल प्रैक्टिशनर, तो एंड दिस प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर, सो आप केस लॉ को ही हवाला देते हो। हमारे तो केस लॉ, हमारा दोस्त एम्यूनेशन केस लॉ ही है। सो बिल्कुल, आप बल्कि पाकिस्तान में तो आपने ये अगर बात करो, तो कभी आप सिंध की जजमेंट दे दो, तो जज कहता है जी देखें ये तो सिंध की है। मेरा, जिस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक हाईली सेंसिटिव क्रिमिनल केस है, उसमें मैंने केपी पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट्स का हवाला दिया। तो मुझे जज साहब ने कहा कि जी ये तो देखिए वकील साहब, आप केपी की एग्जांपल दे रहे हैं, तो केपी का केस लॉ दे रहे हैं। तो मैंने कहा जी केपी जिम्बाब्वे में तो नहीं है, पाकिस्तान का ही हिस्सा है। मैंने जिम्बाब्वे की जजमेंट तो नहीं दी। तो वो जजेस को होता है थोड़ा सा, एक यहाँ तो एक सिंगल का सिंगल पे बाइंडिंग नहीं है। हमारे जिस तरह अनफॉर्चुनेटली कुछ असूली तौर पे ठीक भी बात है, पोलैरिटीज होती हैं, हर किसी की अपनी जज की थिंकिंग होती है। एक कमरा अदालत में एक जज साहब दूसरे जज साहब की जजमेंट नहीं मानते। लाहौर में ऐसा है, आई डोंट नो इस्लामाबाद में कैसा है। सो ये इश्यूज तो होते हैं, बट जो बंदा अगेन अच्छे जजेस भी हैं, वो समझते हैं बात को, आप उनको तरीके से कन्विंस करें, सो बिल्कुल वो अप्रिशिएट भी करते हैं टाइम्स। जिस तरह मेरा एक नेग्लिजेंस का, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, उसमें पाकिस्तान में केस लॉ है ही नहीं, बल्कि मुझे बड़ी तफ्शीश हुई, 4 दिन पहले शायद लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर कुछ सिमिलर ऐसी फाइंडिंग इस्लामाबाद ने वो दी है। सो वो मैं लाहौर में अपने हाई कोर्ट बेंच में मैं रिलाई इंडियन जजमेंट्स और यूके जजमेंट्स पे करता हूँ। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी अहमद सलीम कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अहमद, अहमद आपका हाथ रेज्ड है, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। अगर आपने, इफ यू पुश द बटन बाय मिस्टेक, इट्स ओके। एनी मोर? We also have to wind up in 10 minutes. We're running out of time. जी 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 अहमद, कोई और कुछ सवाल पूछना चाहे? Mr. Hussain Ali also had a question, I suppose. जी I had That's a okay. That's ये okay. sounds You can type your question in the chat box.
I also had a question, sir. जी 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 सर ये प्लीज कॉपीराइट लॉज की एनफोर्समेंट का पूछना था कि फॉर एग्जांपल अगर यूएस की जुरिसडिक्शन में देखा जाए तो उधर एफबीआई इफ आई एम नॉट रॉन्ग डील्स विद इट। जी जी जिस तरह हमारी एफआईए है एफबीआई फेडरल बिल्कुल ब्यूरो, हमारी क्योंकि फेडरल एफआईए। एम्बेट में आता है ना। अभी एक और भाई ने भी पूछा ट्रेडमार्क, तो बिल्कुल आईपी लॉज जो है वो फेडरल है। जी बिल्कुल बट एनफोर्समेंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा नजर आता है, वहां पे पीपल आर एक्चुअली स्केयर्ड, डिटेरेंस है कि एफबीआई आ हाँ जाएगी। भाई जी, नेटफ्लिक्स के पासवर्ड नहीं शेयर होते अब तो ऐसे ये ही है कि है, लोग ऐसे ही है। नेटफ्लिक्स का पासवर्ड, क्योंकि वो भी टेक्निकली वायलेशन है, तो और वो इधर तो हाँ, इधर तो आपको अमेरिकन से को वो डरता है, वो पासवर्ड नहीं शेयर करता Amazon का बिल्कुल प्राइम को। और आगे पूछो आप। तो ये इन्फोर्समेंट का डिफरेंस मेनली इतना आपको क्यों लगता है पाकिस्तान के अंदर डल है इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इस चीज का? यार देखो, ये हमारी ना कल्चरल थिंग है हैदर। आप आई होप यूर आप लॉयर हो शायद या स्टूडेंट हो, अच्छा सवाल आई एम आपने ए पूछा। फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट सर। हाँ तो लॉयर ही हो आप, हम सारे स्टूडेंट्स ही हैं बाय द वे। सर मैं भी स्टूडेंट ही हूँ ठीक है, सारे हम सीख ही रहे होते हैं। सो यार हैदर, इसमें जो मैंने देखा है ना अपने एक्सपीरियंस में बताता हूँ यार, ये कल्चरल थिंग है। मैं भी जब स्टूडेंट था सोच पूछते थे, प्रैक्टिस में भी पूछते थे कि ऐसा क्यों है, और अभी भी सोचते हैं, ऑनेस्टली अभी भी सोचते हैं यार क्या मसला है। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल, आप ट्रैफिक सिग्नल की एग्जांपल ले लो। आप सर कोई सार्जेंट को, जब इन्फोर्समेंट थी यहाँ पर लाहौर में, घरों में चलान आते थे, सब सीधे हो गए थे। ठीक है, अब तो जिस दिन संडे है क्या, तो लोग कह रहे हैं यार जाने दो। अब तो लाहौर में तो ऐसा, आई डोंट नो आप बाकी लोग किधर क्या चक्कर है, वन वे से मेन रोड से ट्रक आ रहा होता है। सो इसका यार बेसिकली कल्चरल, मैं कहूंगा एक कल्चरल चीज है। हम हमें पता है कि यार देखो, मैं किसी को जानता हूँ, मेरे चाचा या मामू या कोई कोई फलानी पोस्ट में क्या है, या मेरे वालिद साहब फौज में है, ठीक है, तो मुझे किसने पूछना है। सो ये कल्चरल चीज है, और आपको दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और मैं कहूँगा तहजीब की कमी है। तो वो एक एक हमारा हमारा मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कल्चरल थिंग। सो उसमें ये है कि शऊर, वही जो एक हमने पहले भी इस तरह की बात की कि अपना आप शऊर बढ़ाएं, आपको पता होना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ठीक है, अगेन इसमें एक साइकोलॉजिकल, आपने जो भी मैं बात की, मैं थोड़ा सा पढ़ा था, एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी होती है कि जब देखो आपको सबको होना पता हो कि आप अगर किसी को बता रहे हो, पाकिस्तान में एक हैदर एक चीज है कि अगर आप लॉ तोड़ के इफ यू गेट योर वे, तो लोग कहते हैं वाह यार चीता लगा है, चैंपियन लगा है। ठीक है, बाहर ऐसे नहीं होता। बाहर अगर आप कौन है यार, मैंने इशारा तोड़ा था ये वो, तो लोग कहेंगे यार इसके साथ तो बैठो ही ना, ऐसा हाथ भी नहीं मिलाना, इसके साथ खाना भी नहीं खाना। सो एक बॉयकॉट भी है। ठीक है, हमारे यहाँ उसको चैंपियन बना देते हैं, उस बंदे की इज्जत जरा ज्यादा होती है। सो अगेन इट्स इन आवर काइंड ऑफ इन आवर ईथॉस, सो विच इज रॉन्ग। वो हम सब ने मिलकर उसको ठीक करना है, गलत को गलत कहना। सो ये आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। सर लास्टली मैं एक बात थैंक यू शेयर सर। करूंगा, पूछूंगा अभी कि अवेयरनेस लोगों को कैसे बताई जाए अबाउट ट्रेडमार्क। लोग इस चीज को भी नहीं समझ सकते कि यार ट्रेडमार्क भी है, या इसकी वर्थ नहीं समझ सकते वो लोग। जी जी भैया, जजेस भी नहीं समझते ऐसा ही कुछ इवन कुछ जजेस भी नहीं समझते मेरे केसेस में। बट अगेन वो शायद एक और एस्पेक्ट से सोचते हो, बेनिफिट ऑफ मार्जिन हर किसी को देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, अगेन जजेस भी इंसान है, हम लोग भी हैं, हमें भी नहीं कभी उनका तो खैर प्रेशर ही, और अल्लाह, मैं तो बहुत ही मुश्किल काम है एडजुडिकेशन, खासतौर पे आजकल के हॉल में। उसमें यही है कि यार एक अनबायस्ड तरीके से आप चीजों को देखें, अपना लर्निंग कर्व बढ़ाएं। इस तरह सेमिनार्स हैं, आप उसको पढ़ें, डिस्कशन करें। ठीक है, जिस तरह के देखो कुछ आपकी प्रायोरिटीज होती है ना, अब कुछ लोगों की इलेक्शन प्रायोरिटीज है, तो इलेक्शन की कोई भी चीज उनसे पूछो उनको पता होती है। ठीक है, सो आपने इस चीज को हमने फिर प्रायोरिटाइज करना है। अगेन जो बिजनेस कम्युनिटी है, ये किसी शकील भाई ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि चेंबर ऑफ कॉमर्स में जाएं। ठीक है, और कुछ बिजनेसेस जो जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो उस चीज को रियलाइज करती है, ब्रांडिंग को रियलाइज करती है। ठीक है, जो पुराना सिस्टम था, पुराने बिजनेसेस थे, वो नहीं करते थे, वो लोकल सोचते थे। अब लोकल नहीं है। अब अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, तो आप सोचें आपका बिजनेस ही नहीं है, यू डोंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब कोई सियालकोट या गुजर खान में बैठा हुआ बंदा अचार भी अगर अच्छी क्वालिटी का बना रहा है क्या, तो वो इंडिया में भी बिकेगा, वो दुबई भी जाएगा, वो कैलिफोर्निया भी जाएगा, हमारा जहाँ पिंक सॉल्ट है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी एग्जांपल देता हूँ। वो आपका एक एफिशिएंट मॉडल, ऑनलाइन मॉडल है सेल्स का। आप अभी देखो, आप अपनी फेसबुक खोलो, ठीक है, आपने अगर भी कोई कोई चीज, कोई खास, कोई कुछ भी चीज देखनी है ना, वो आपको अगर आप देख रहे हो यार मिलती है कि नहीं मिलती, पाकिस्तान में तो अमेजोन नहीं है, सो आप फेसबुक मार्केट में जाते हो, आपको नंबर्स मिल जाते हैं, आप उनसे मंगवा लेते हो, सेल और बाइंग और सेलिंग होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी ब्रांडिंग करो और प्रॉपर तरीके से करो, सो तो वर्ल्ड वर्ल्ड इज एट योर डिस्पोजल, और ये यंग जनरेशन को पता है इस बात का।
दैट्स हाउ दे सेल देयर सर्विसेज। सो उसमें ब्रांडिंग और ये सारी चीजें आती हैं, इंटरनेशनली आती हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान में तो यार ये हरकत हैदर जो उसने पूछा था कर सकते हो, बट इंटरनेशनली हरकतें नहीं चलती, वो आपको कोई पूछेगा भी नहीं, इसलिए हम इंटरनेशनली वे बहुत पीछे हैं स्टोन एजेस में, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से इन चीजों को करते नहीं हैं। Sir, there is a question in the chat box. जी जी, मैं सॉरी There are देख a ही नहीं number of चैट बॉक्स। restaurants that have similar names like Medina Restaurant or Bismillah Restaurant, etc. Would IP laws apply on these? बिल्कुल, क्यों नहीं, वाई नॉट, The बिल्कुल registration लगेंगी, process again. बिल्कुल लगेंगी, लेकिन उसमें एक फेयर यूज, ट्रेडमार्क की आप शायद ट्रेडमार्क की एग्जांपल दे रहे हैं, लेट्स इमेजिन एक फीका, और इसमें अर्लियर यूज भी है, बहुत केवियट्स एंड डिफेंसेस हैं ट्रेडमार्क में। एक बेसिक चीज फेयर यूज है कि यार देखो, अब मदीना इज अ नेम ऑफ, मदीना अरबी में शहर को बोलते हैं, ठीक है, मदीना मुनव्वरा को तो सबको पता है, बट अरबी में आप देखें मदीना इज एक शहर का नाम है, तो कुछ चीजें आप अपनी हेजमनी, और देखो आपने एक खास बैलेंस है मोनोपोली का और आपके राइट्स का, आप मोनोपोलाइज नहीं किसी चीज को कर सकते, आपके राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे। सो कुछ चीजें तो आप ट्रेड मार्केबल ही नहीं है, कॉपीराइटेबल ही नहीं है, या पैटेंटेबल ही नहीं है, सही है। और उसमें एक हमेशा कॉन्सेप्ट इन तीनों चीजों में फेयर यूज का भी आता है कि अब अगर मदीना है, मदीना रेस्टोरेंट है, मदीना फोटोकॉपियर है, या ऐसा कुछ है, सो वो मदीना तो एक शहर का नाम है, या आपने मोहम्मद या अली या सुमैया शाहजेब के नाम से कुछ कर दिया, तो जनरल नेम्स है, इसमें तो किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए ना, एज लॉन्ग एज वो किसी एक खास डिजाइन फॉन्ट कलर स्कीम पे है, और आप उसको कुछ इस तरह ब्रांड करते हो, तो फिर आपको उसका राइट होगा। जिस तरह आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे पास केसेस हैं, इफ आई में, निराला, निराला इसका मतलब उर्दू फारसी में नया होता है, ठीक है, निराला फूड्स भी हैं, निराला कढ़ाई भी है, निराला पता नहीं क्या कुछ है। सो निराला को आप ट्रेडमार्क तो एक्सक्लूसिवली आपको प्रोटेक्शंस में लीगल वर्ड है एक्सक्लूसिव राइट, आपको निराला वर्ड का एक्सक्लूसिव राइट तो लॉ में ही नहीं मिलता, और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस पे ट्रेडमार्क भी ऑब्जेक्शन कर देता है, लिटिगेशन भी चलती है कि जी हमें जस्टिफाई करें, मेरा नाम भी बिजनेस का निराला है, आपका भी निराला है, तो आप तो इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं। कानून इस पे एब्सोल्युटली क्लियर है कि ये तो नॉन एक्सक्लूसिव राइट है, कोई भी यूज कर सकता है, आपका स्टाइल फॉन्ट कलर स्कीम नहीं यूज कर सकता। Right. सो इस पे अनफॉर्चुनेटली लिटिगेशन और बहस भी नहीं होनी चाहिए, और लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उधर ही फंसे हुए हैं। Right. Fair Sir, enough. we're running out of time, so जी if जी anyone has any questions, you can जी जी send them in the group and we can discuss them in the next session. और इसमें सिर्फ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जितने भी हमारे लोगों ने आज अटेंड किए हैं, सो आप लोग सब अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, कटानाज लॉ चैम्बर केएलसी के फेसबुक पेज के ऊपर कमेंट सेक्शन के अंदर, और जिस पोस्ट के कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, उसका लिंक अभी ग्रुप में शेयर कर दिया हुआ है। एक चीज, जी जी दूसरी चीज ये कि ऑब्वियसली इसके अंदर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी, तो काइंडली जब आप अपना उस पर रिव्यू शेयर करते हैं, अपना फीडबैक शेयर करते हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स भी ग्रुप के अंदर आप शेयर करेंगे, फिर हम उस हिसाब से उसकी सर्टिफिकेशन भी जारी करेंगे। And again, I would actually like to thank Mr. Ani Katana. He's the managing partner of KLC. And thank you, Ali Salimi साहब, sir, आपका for such an insight and your time. And जो moderator है हमारे साथ अहमद साहब. And again, जितने भी हमारे participants हैं for taking interest in it. और दूसरी चीज ये कि we're not ending here. हम ये पूरी एक सीरीज बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक उसका बिल्कुल ये हमने एक स्टार्ट लिया है। सो आगे लोग और बढ़ते जाएंगे, बट आप लोग जितने भी हमारे आगे सीरीज के पार्ट होंगे उसका हिस्सा रहें। And again, thank you very much, everybody, for today. जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, You're थैंक यू welcome, sir. फॉर वेरी स्मार्ट क्वेश्चंस, थैंक यू मिस्टर गिलानी, थैंक यू मिस्टर बासिम, आई हैड अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, आप लोगों ने माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छे सवाल आप पूछे, थैंक यू जी, Thank थैंक Thank यू। you very much. एंड अगेन लेट्स कंटिन्यू दिस फर्दर, दिस इज नॉट द For एंड, sure. दिस इज जस्ट टू स्टार्ट, थैंक यू। Thank you, everyone. As Mr. Basim stated, this was the first of many upcoming webinars on the topic, and we hope to see you through all of these, inshallah. And I hope this was helpful. Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू Thank you. एवरीवन, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Everyone is requested to leave your feedback on the post. We will send the link in the group. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर इसके कितने सेशंस होंगे और शेड्यूल क्या होगा इसका? ये हम स्केड्यूल और सेशंस का टोटल नंबर आपके साथ शॉर्टली ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। Everyone is free to leave now.
The session has ended.